ابھی ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر جوئل ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ نرسنگا پھونکے، اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ احتراماً آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور خداوند کو ہاللویا کا نعرہ لگاتے ہوئے ویلکم کریں۔ Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ہاللویا ہاللویا۔ Hallelujah. اس کی پیار کی شمع جلائیں، آگے ہی آگے بڑھتے جائیں، ہم کو لینے وہ آ رہا ہے، ہم کو لینے وہ آ رہا ہے۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے اور اپنا قوی ہاتھ ہمارے اوپر بڑھایا ہے۔ تو ابھی وقت ہے، وہ خوبصورت موقع جس میں خداوند کی آواز ہم تک پہنچتی ہے۔ تو ہمارے درمیان خدا کے خادم، خدا کے سورما، جن کے وسیلہ سے ہم سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، خداوند نے انہیں بڑی برکت دے رکھی ہے، اور یہ خدمت خدا نے انہیں بخشی ہے کہ وہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتے ہیں۔ تو آج کے پیغمبر کو آپ کی بھرپور تالیوں میں بشپ محبوب جان کو ہم ویلکم کہتے ہیں، اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی کچھ خدا نے انہیں دیا ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ Thank you. جی بشپ صاحب آپ آئیں پلیز۔ برکت دے جی۔ ہاللویا۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام کو سلام۔ مل کر سیکھیں گے، اور اس کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں چھوٹی سی پریئر کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم دعا مانگیں گے۔ تو پلیز یہ مجھے ان کو بھی لینا پڑتا ہے جو لوگ آتے ہیں۔ بہربر کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں میرے آسمانی اور جلالی خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا آج کے کلام کے لیے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، آخر تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے کلام کے گہرے بھید خداوند اپنے بندہ پر یہاں کرنا۔ خداوند آج جو بھی کلام ہو خداوند ہم سب کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے۔ خداوند ایک ایک روح بدن خداوند برکت پا کر جائے، تیری کلام کے وسیلہ سے برکت پائے۔ خداوند میں نہ بولوں بلکہ تیرا پاک روح مجھ میں سے ہو کر بولے، یسوع مسیح کے پاک نام سے آمین آمین۔ آمین جی آمین۔ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے اعمال 12 باب اس کی 5 آیت۔ اعمال کی کتاب ایکٹ چیپٹر 12 ورس 5۔ خداوند کے پاک کلام میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بادل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس کو پکڑا گیا تو اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور 2 سپاہیوں کو
उसकी निगहबानी के लिए वहां पे खड़ा कर दिया गया, एक को राइट साइड पे, एक को लेफ्ट साइड पे, ताकि वो उसकी निगहबानी करें कि वो भाग ना जाए। देखें, जब एक बंदा जंजीरों में जकड़ा हुआ है तो वो कैसे भाग सकता है? तो फिर खुदा का खादम, खुदा का बंदा, वो नहीं भागेगा। लेकिन क्या होता है कि सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे। सिपाही भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੈਦ ਖਾਨਾ ਦੇ ਨਿਗਹਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ दरवाजे ਦੇ ਉੱਤੇ। लेकिन खुदावंद का फरिश्ता वहां आ खड़ा हुआ। किसके लिए? पतरस के लिए। और खुदावंद के जलाल के लिए, खुदा के जलाल के लिए फरिश्ता वहां आ खड़ा हुआ और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा। उठ जवाना, वक्त आ गया, चल आजाद हो। हालेलुया। उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा, मारकर उसे जगाया और कहा, जल्द उठ। जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कि कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। खुदा दा फरिश्ता उन्हें हर गल दसदा पिया। खुदा दा फरिश्ता उन्हें बचाने लिए आ गया है, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ यूहन्ना 3:16 ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब देखें, पूरी दुनिया के लिए यीशु आ गया, पूरी दुनिया के लिए। जो भी कोई उस पर ईमान लाएगा, जो भी कोई उसको खुदा का बेटा मानेगा, जो भी कोई दुनिया में से कोई भी उसको कहेगा कि ये मेरा नजात दहिंदा है और मेरा बचाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला है, खुदा का बेटा है, तो वो माफ करने में कादर है। वही अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा है, वो कादर मुतलिक है। हम देखते हैं कि खुदा ने, ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा ने मोहब्बत में हमें बेटा दिया। मोहब्बत लेती नहीं, देती है। खुदा ने हमसे मोहब्बत की, दुनिया से मोहब्बत की और उसने उसी मोहब्बत में अपना बेटा दुनिया को बख्श दिया। मोहब्बत ने, खुदा के बेटे ने मोहब्बत में आगे बढ़ते हुए दुनिया के लिए कुर्बानी दी। वो सलीब पर कुर्बान हो गया, उसकी पसली में नेजा भी मारा गया, सर पर कांटों का ताज भी रखा गया और फिर भी वो कह रहा था कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने खुदावंद को दिन और रात जरूर टाइम दें, दुआ मांगे। दुआ बड़ी जरूरी है। दुआ जिंदगी का वो हिस्सा है, जैसे हम कहते हैं कि कलाम पढ़ने से जिंदगी बदल जाती है। कलाम तब्दील नहीं हुआ, बल्कि जो इसको पढ़ता है उसकी जिंदगी बदल जाती है, वो खुद ही बदल जाता है। और जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो
ہم خدا سے بات چیت کرتے ہیں, ہم اپنی فریاد خدا کو سناتے ہیں اور خدا کو کہتے ہیں کہ خداوند ہمارے لیے یہ کر. لیکن جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر خدا ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرتا ہے, وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بیٹے نے قربانی دی اور قربانی نے ہمارا کفارہ دیا اور کفارے نے ہمیں نجات بخشی ہے. اس لیے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے. ہم اس کے پیروکار ہیں, ہم اس کے ماننے والے ہیں, ہم اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں. سو خداوند ہمارا زندہ ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. اور پھر کیوں نہ یہ زندگی جو ہے جو خداوند نے ہمیں دی ہوئی ہے, یہ ہم یسوع کے جلال کے لیے کیوں نہ استعمال کریں اس کو. ہاللویہ. ہمیں چاہیے کہ زبردست. یہ زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع کے جلال کے لیے ہونی چاہیے. ہم مٹی کے برتن ضرور ہیں, مگر مٹی کے برتنوں کو وہ اپنے جلال کے لیے, اپنی گواہی کے لیے استعمال کرتا ہے. سونے چاندی کے برتن تو بادشاہی محلوں میں ہوتے ہیں, لیکن مٹی کے برتن خدا کے جلال کے لیے. ہاللویہ. ہاللویہ. اس لیے خداوند کا بندہ جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ اعمال 16 باب 26 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ذکر ہے 16 باب, اگر کسی کو پہلے مل جائے تو وہ پلیز ذرا پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں. کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا, یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی, اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں, اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے. آگے پڑھنے. کہاں سے پڑھا آپ نے؟ 16 کی 26 آپ نے بولا تھا. نہیں, پلیز ذرا 25 سے شروع کریں, بلکہ اگر ہو سکے تو 26 بھی پڑھ لیں. اور اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کانٹ میں ٹھونک دیے, اور آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے ہیں اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے, اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا, یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی, اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں, اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے. پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا, لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا, اپنے تائیں نقصان نہ پہنچانا, کیونکہ ہم سب موجود ہیں. آمین. اور وہ آمین. دیکھیں جی, وہاں پہ پطرس کی قید خانہ میں نگہبانی ہو رہی تھی, اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پالوس اور سلاس کو کوڑے لگوا کر انہوں نے اندر بند کر دیا, تو یہاں پر بھی ان کی نگہبانی ہو رہی ہے, خدا کے لوگوں کی نگہبانی ہو رہی ہے. کیوں ایسے ہوتا تھا؟ اس لیے ہوتا تھا کہ یہ جو آج بھی کچھ یہودی جو ہیں وہ خداوند یسوع پر ایمان نہیں لا رہے. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے, ابھی یسوع نہیں آیا. یہودی نہیں مانتے ابھی بھی, لیکن ہم جو مانتے ہیں, اسی لیے تو خداوند نے کہا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں.
ہم سب مبارک بن گئے ہیں، ہم مبارک ہیں، اور ہم نے یسوع کو نہیں دیکھا لیکن ہم یسوع پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو اب ہمیں یسوع بھی دکھتا ہے، ہمیں یسوع نظر آتا ہے، ہماری زندگیوں میں یسوع ہے، ہمارے اندر یسوع ہے۔ تو انسان کی زندگی سے یسوع نظر آتا ہے۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جب بندہ کام کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ اس کے بولنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کا بندہ ہے۔ اس لیے پولس اور سلاس کی نگہبانی ہو رہی تھی، لیکن کیا ہے کہ خدا کا ایک اور فرشتہ وہاں پہ آتا ہے، اور وہ وہاں پہ آ کے پوری بلڈنگ کو ہلا دیتا ہے، بنچال آ جاتا ہے۔ تو ان کی بھی بیڑیاں کھل گئیں، اور دروگا جو تھا وہاں پہ جو ڈیوٹی دے رہا تھا وہ سمجھا کے قیدی بھاگ گئے۔ اب تو میرے سردار جو تھے وہ جیل کے جو سردار ہوتے ہیں، جو مطلب جیلر ہوتے ہیں، اس نے کہا وہ تو اب مجھے نہیں چھوڑیں گے، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان ہی دے دوں۔ لیکن پولس نے بڑی آواز سے اس کو پکار کر کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، ہم سب یہاں پر موجود ہیں، اس لیے کہ یسوع ان کے ساتھ موجود تھا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جہاں میرے خادم ہیں میں وہاں موجود ہوں۔ یسوع وہاں موجود ہوتا ہے جہاں اس کے خادم ہوتے ہیں، وہاں پر یسوع موجود ہوتا ہے۔ اور پھر ہی تو خادم جب دعا کرتے ہیں تو معجزے ہوتے ہیں، پھر ہی معجزے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایسا ہی ہے کہ پولس اور سلاس کی زندگی میں معجزہ ہے، پطرس کی زندگی میں معجزہ ہے، اور ہم سب کی زندگی میں معجزے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب لازر مر گیا تو اس کی دونوں بہنوں نے کہا کہ اگر یسوع یہاں ہوتا تو یہ نہ مرتا۔ تو خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ لازر مر گیا، سو گیا۔ وہ یہ تو کہتے ہی نہیں تھے نا کہ مر گیا، وہ تو کہتا تھا سو گیا۔ تو ہمیں وہاں جانا ہے، اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ ہمیں وہاں چلنا ہے۔ تو 4 دن کے بعد جا کے خداوند نے لازر کو زندہ کیا۔ اس کی بہنیں کہتی ہیں کہ خداوند اب تو 4 دن ہو گئے ہیں، وہ تو مطلب اب کیسے اٹھے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ چلیں چل کے دیکھتے ہیں اور وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس کی بہنیں کہتی ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے کہ وہ جب قیامت والے دن وہ ضرور زندہ ہوگا۔ اس نے کہا زندگی اور قیامت کا مالک میں ہوں، میں سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، میرے پاس سارے اختیار میرے باپ نے مجھے دیے ہوئے ہیں۔ اور پھر کافی لوگ، کچھ یہودی بھی چلتے ہیں کہ چلیں جی دیکھیں یسوع آیا ہے، کیا کرتا ہے، یہ کون سا معجزہ ہوتا ہے، لازر زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو جب خداوند نے کہا کہ اس کے پتھر کو پیچھے ہٹاؤ، تو لازر کی بہنیں کہتی ہیں کہ اب تو بدبو آ رہی ہے نا۔ خیر پتھر پیچھے ہٹایا اور یسوع نے اس کو آواز دی کہ لازر باہر آ، تو وہ کفن سمیت ہی باہر آ گیا۔ یہ میرے یسوع کا جلال ہے، کفن سمیت باہر آ گیا، اور دیکھنے والوں پر کیا ہوا جی؟ دیکھنے والوں پر خوف طاری ہو گیا، چھا گیا۔ وہی یہ کیا ہو گیا؟ یسوع یہ ہے کون جو اس نے مردہ زندہ کر دیا، اور 4 دن کے مطلب مردے کو اس نے زندہ کر دیا۔ پھر جو لوگ وہاں دیکھ رہے تھے وہ تو ایمان لے آئے یسوع پر، کیونکہ خداوند کے جلال کے لیے تھا سارا کچھ۔ اور خداوند جہاں بھی جاتا تھا
एक दफ़ा का जिक्र है कि मैंने ललाम गढ़ पाकिस्तान में लगता था तारक अजीज का, तो वहाँ किसी ने क्वेश्चन किया कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो मसीहों के यसु मसीह हैं, उन्होंने आज तक कितने जनाजे पढ़े हैं? तो तारक अजीज ने ये जवाब दिया। तारक अजीज का जवाब सुने, उसने कहा कि मैंने तो ये नहीं सुना कि वो जनाजे पढ़ते थे, मैंने ये जरूर सुना है कि वो जिस जनाजे में गए हैं वो मुर्दा ही जिंदा हो गया है। हालेलुया, वो मुर्दा ही जिंदा हो गया है, तो जनाजा किसका पढ़ना था? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की Praise तारीफ the हो। इसी तरह हम ये कहते हैं कि खुदावंद जब जा रहे थे तो रास्ते में उसने खुदावंद ने देखा कि एक बेवा का बेटा था, नैनवा के नैनवा शहर के से गुजर रहे थे, तो वहां पे एक बेवा के बेटे को उन्होंने देखा कि वो दफनाने के लिए उसको कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। तो खुदावंद को यीशु को बेवा पर तरस आया। यीशु ने जनाजे को रोक दिया वहां पे और कहा, यीशु ने बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया। हालेलुया। बेवा के बेटे को देखो, वो दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं और यीशु मिल गया। तो यीशु ने कहा, जा अपनी मां दे कोल जा, तेरा की काम है उत्थे कब्रिस्तान च जा। अजे तू यीशु नू कबूल कर, अजे यीशु दीयां गल्लां सिख, ते अजे तेरे को मौका है वे, अज भी तू तौबा कर लै, वापस आ जा, तेनू जिंदगी खुदा ने दे दी थी। ते जिंदगी जिहड़ी है, मैं फिर बार बार The आना, Lord. Praise the खुदा Lord. जिंदगी देंदा ते वो जिंदगी यीशु दे जलाल नहीं होनी चाहिए। यीशु दे जलाल नहीं। हिजकिया बादशाह नू खुदा ने 15 साल उम्र ओदी बढ़ा दी सी। ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂਮ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। मैं जनाब पास्टर जोएल, पास्टर जोएल, हाँ जी, लाजर दी कब्र च अंदरों हो के आए ने जी। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद तुहानू बरकत दे। इसलिए भी जिंदा खुदा दे खादम ने। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि खुदावंद जो है वो मौजज़ात का खुदा है। उसने एक, जब हम यूहन्ना 9 बाप उसकी एक पहली 3 आयत पढ़ते हैं, तो यीशु ने एक जन्म के अंधे की आंखें खोल दी और फिर लोग उससे सवाल करने लगे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 9 बाप, फिर लोग उससे सवाल करने लगे, जी ये किसका कसूर था? इसका कसूर है या इसके माँ बाप का कसूर था? तो यीशु वहां भी कहता है कि ना इसका कसूर है ना इसके माँ बाप का, बल्कि ये खुदावंद के जलाल के लिए है। यूहन्ना 9 बाप। यीशु ने जवाब दिया कि ना उसने गुनाह किया था ना उसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उस पे जाहिर हों। आमीन। Amen. फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था और ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। हालेलुया। खुदा का जलाल जाहिर होता है। यीशु भी जब मौजज़े करता था तो वो खुदा का जलाल जाहिर करता था। तो यीशु मेरा दोस्त है, आपका दोस्त है,
تو जो यसू जिसका दोस्त बन जाता है उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती। वो फिर अपनी बरकतों और बख्शिशों से ही आगे निकल जाते हैं लोग। जैसे जैसे हम खुदावंद के साथ टाइम गुजारते हैं, हमारी जिंदगी में हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम खुदावंद के साथ चलते हैं, जैसे जैसे हम यीशु के जलाल और गवाही के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी जिंदगी में हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमें मुश्किल में परेशानी तो होती है, थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। अगर थोड़े वक्त के लिए अगर आप नाउम्मीद हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन होपलेस ना हो। अपने हीलिंग के प्रोसेस को अपना काम पूरा करने दें, ताकि जब आपकी जिंदगी में हीलिंग आएगी, आप यीशु के जलाल के लिए काम करेंगे, यीशु के जलाल के लिए नारे मारेंगे, बोलेंगे हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो। और खुदावंद के उस वक्त लोग फिर क्वेश्चन भी करते हैं कि खुदावंद के आने के निशानात क्या होंगे। खुदावंद के आने के निशानात ये होंगे कि यसाया की किताब में हम पढ़ते हैं कि अंधों की आंखें खुलेंगी, गूंगे बोलने लगेंगे, लंगड़े भागने लगेंगे, मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। ये उसके निशानात हैं। जब उसने आना है, हम सबको लेने के लिए आएगा, तो वो ये निशानात हमें पहले से मिल जाएंगे, जो कि अभी हम जिनकी खिदमत कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं खुदावंद के जलाल के लिए, ये सारे काम खुदावंद ने किए हुए हैं। अब खुदावंद का पता नहीं वो कब आ जाए, अभी आ जाए, थोड़ी देर बाद आ जाए, रात को आ जाए, सुबह आ जाए, ना इसको मैं जानता हूँ, ना कोई और जानता है, सिर्फ सिवाय बाप के और कोई नहीं जानता कि यीशु ने किस वक्त आ जाना। हमारा सिर्फ आसमानी बाप जानता है उस वक्त को, जब यीशु ने हमें लेने के लिए आना है। और हमें चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें। जब हम देखते हैं कि यीशु हौज अपना पढ़ते हैं यूहन्ना 5 बाब उसकी 3 से 9 आयत तक, वहां पर देखते हैं कि 38 साल के बीमार को यीशु शिफा देता है। वो एक गीत भी है ना, हौज हिल रहा है पाकरू के जोर से। वहां खुदावंद का फरिश्ता टाइम आता था और वो उस पानी को हिलाता था। जो पानी हिलते हिलते जो उसमें छलांग मार देता था, वो शिफा पा जाता था। और एक 38 साल का लंगड़ा वहां पर मौजूद था। वो उसके उठते उठते कोई और उस पानी में कूद पड़ता था। निकाला है आपने एलिजबेथ? जी भाई। हाँ, पढ़ेंगे प्लीज। क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज में तीन आयत से पढ़ना है। हाँ, 3 से। उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और मुर्दार लोग जो पानी हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता तो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल पी। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। आमीन। वो
तंदुरुस्त हो गया यीशु के कलाम करने से, यीशु के बोलने से, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो अपना कलाम नाजिल करता है और लोगों को शिफा देता है। और उस खुदावंद ने उससे कहा कि चल उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और वो उसी दम उसके सारा बदन जिस्म A1 हो गया, वो शिफा पा गया। ये भी खुदा के जलाल के लिए है, मौजज़े खुदावंद के जलाल के लिए हैं। लेकिन जो ईमान लाता है, ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होते हैं। उनका ईमान था कि यीशु आ गया तो हम बच जाएंगे। यीशु कहता है जाओ, तुम्हारे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और यीशु ने उसको भी कहा कि चल अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े बड़े मौजज़े किए हैं। खुदावंद ने, हम देखते हैं कि 5 रोटियां और 2 मछलियों को भी खुदावंद ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। 5000 मर्दों ने खाना खाया था। और तो और बच्चों का कोई ये पहला मौजज़ा था जो 5000 लोगों ने खाना खाया। पहला मौजज़ा ये, मतलब ये नहीं मैं कहता कि पहला मौजज़ा तो वो था ना काना गलील की शादी वाला। हिस्सा मैं ये कह रहा हूँ कि ये रोटियों का पहला मौजज़ा ये है कि 5000 लोगों को खाना खिलाया। फिर दूसरा मौजज़ा इसी में हुआ कि वो 12 टोकरे भी बच गए। रोटियां तो 5 थी, टोकरे 12 बच रहे हैं। ये दूसरा मौजज़ा था। फिर देखें कि लोगों की लाइनें, कतारें में खुदा ने उनको शागिर्दों को कहा कि इनको लाइनों में बिठा दो। 50-50 की कतारें थी, उन्होंने उनको कतारों में बिठाया। और फिर भी देखें वो 3 दिन के भूखे लोग थे। 3 दिन वो यीशु के साथ ही थे, खाना भी नहीं उन्होंने खाया हुआ था। लेकिन जब उन्होंने 3 दिन के भूखों ने खाना खाया तो फिर भी 12 टोकरे रोटियों के जो टुकड़े थे वो 12 टोकरे बचे। लेकिन खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने कहा कि इनको भी उठाओ, टोकरों में रखो, खाना इधर उधर ना, पाँव के नीचे ना रौंदा जाए। खुदावंद जो है वो बड़े बड़े मौजज़ात करता है। और जिसने ये खाना पेश किया था कि मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, कोई बता सकता है कि वो कौन था बच्चा? वो थमोथियस, उसका नाम थमोथियस था। आज भी बाइबल में उसके 2 खत मौजूद हैं थमोथियस के। बाद में वो रसूल बना। और वो पौलुस रसूल का शागिर्द भी था। और कितना, मतलब बच्चे को क्या पता था, लेकिन उसकी माँ ने घर से उसको ये खाना दिया था कि बेटा ये ले, तू भी खाना, अगर कोई और वहां पे मांगेगा तो उसको भी मतलब तू दे देना साथ। मतलब होता है कि बच्चा जा रहा है, अगर हमारे बच्चे जब स्कूल ही जाते हैं तो वो कहता है मामा मेरा वो दोस्त है, उसके लिए भी एक रोटी दे दे मुझे जरा साथ, वो मेरे साथ बैठ के खाना खाता है। तो उसकी मामा कहती है ले बेटा एक नहीं 2 ले जा, 2 रोटियां ले जा, तू उसके लिए 2 रोटियां ले जा। तो हम देखते हैं कि तिमोथियस की माँ ने भी उसको 5 रोटियां दी थी और 2 मछलियां दी थी। तो खुदावंद ने उस पर बरकत दी, रोटियों पर बरकत दी, और वो बहुत बड़ा मौजज़ा बन गया। लोग खा के सैर हो गए। असल में 5 रोटियां क्या थी? ब्लेसिंग थी, यीशु की ब्लेसिंग। वो ब्लेसिंग से उनका पेट भर रहा था। हालेलुया। जो यीशु Hallelujah. थी वो उनके अंदर जा रही थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो टाइम तो हो गया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा टाइम लूंगा। और अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह
इस दुनिया में आए तो मैंने पहले बताया कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की थी, और ये खुदा की मोहब्बत है कि वो खुदा हमें शिफा भी देता है। ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा मौजज़ात करता है, ये खुदा की मोहब्बत है। जो हमारी ज़िंदगियों में मौजज़ात होते हैं, ये खुदा की मोहब्बत है, क्योंकि हम खुदा पर ईमान रखते हैं। हम अपने ज़िंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। आप देखते हैं कि खुदा ने यूहन्ना को नूर की गवाही देने के लिए भेजा था। जब यूहन्ना नूर की गवाही देने के लिए आया तो वो खुद तो नूर ना था। कलाम में लिखा है कि यूहन्ना खुद तो नूर ना था, मगर खुदा ने यूहन्ना को मसीह की खुशखबरी सुनाने के लिए इस दुनिया में भेजा था कि जाके मसीह की, यानी खुदावंद यीशु मसीह को नूर कहा गया है, और उस नूर की मुनादी कर, उस नूर की खुशखबरी दे जाके लोगों तक पहुंचा। इसलिए हम देखते हैं कि यसाया में जब हम पढ़ते हैं, यसाया की नहीं, दानियल की किताब में जब हम देखते हैं 9 बाब 25 आयत में, तो लिखा है कि हमेशा के लिए तमाम बादशाहों और कौमों पर हाकम उसकी हुकूमत का आखिर ना होगा। दानियल मसीह के बारे में कह रहा है कि उसकी हुकूमत का आखिर ना होगा। वो हमेशा के लिए तमाम बादशाहों और कौमों पर हाकम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि गिनती की किताब में 24 बाब 17 आयत में बिलाम ने उसे यकूब का सितारा, बिलाम एक फालगीज था, लेकिन जब उसकी खुदा से मुलाकात होगी, खुदा से बातचीत होगी, तो उसको भी बाइबल में मैंने पढ़ा था कि उसको भी फिर नबी कहा गया था कि ये भी एक खुदा का खादम है। और वो कहता है कि बिलाम ने उसे यकूब का सितारा, यीशु को यकूब का सितारा कहा, और इस्राएल का सुनहरी आसा कहा। फिर यसाया 9 बाब 7 आयत में लिखा है कि यसाया ने उसे दाऊद के तख्त का वारिस, यानी अब्दी बादशाह कहा। दाऊद के तख्त का वारिस यीशु मसीह, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो दाऊद की असल और नस्ल से होगा। हालेलुया, जय मसीह दी। और मीका ने उसे इस्राएल का अब्दी हाकम कहा। जब हम मीका की इंजील में कलाम में पढ़ते हैं बाइबल में, तो नया अहदनामे में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे मीका की किताब में लिखा है कि उसे इस्राएल का अब्दी हाकम कहा। तो आज मुझे और आपको भी ज़रूरत है कि हम खुदावंद के जलाल के लिए, उसकी गवाही के लिए आगे बढ़ें, और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे मौजज़ात हमें बख्शे कि हम खुदावंद के जलाल के लिए, उसकी गवाही के लिए लोगों पर हाथ रख के दुआ करें, तो लोग भी शिफा पाएं, और ये सारा इज्जत और जलाल यीशु नाम को मिले। ये भी यीशु के जलाल के लिए हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीले आप सबको बरकत दे, और आपकी हमेशा सलामती होती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से खुदावंद के कलाम को पेश किया है कि हमारा खुदा जो है वो वाकई नामुमकिनात का खुदा है, मोजज़ात का खुदा है। और जब हम दिल से दुआ करते हैं तो वो सुनने की कुदरत रखता है।